कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, आजकल पूरे देश विदेश से मुझे कॉल आते हैं, कई गल्फ कंट्रीज से कॉल आते हैं कि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है, आपसे सीखना है, क्या करना चाहिए, उन्हें भी मैं यही बताता हूँ। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर परेशान होते हैं, जिन्हें सोल्यूशन नहीं आया है, और किसी भी बंदे को गुड इवनिंग। Today I have come here with a nice video. Generally I say I have brought a video. Why? Because in that video I'm going to teach you something. But today in this lockdown, why is it lockdown? If you are a student, if you are a teacher, so for a student, for a teacher and all those persons related to institution and college, there is a lockdown in Bihar. So today I am going to talk about a video. In this video you are going to learn 5 tips how to improve your communication skills. So in other words, you can say this video belongs to those person who wants to utilize their free time, and those who love to do some innovative works, who love to do miracle in their life. Definitely they must watch this video. If you live in Bihar, you could be good at mathematics, you could be good at science subject, you could be good at some other part of competitive examination, but as far as English is concerned, still the people want to improve, the students want to improve their communication skills or English language. So let's come to the topic. Topic is 5 tips in this lockdown, how could you improve your communication skills. And this is not only communication skills, this is tips for those students who always fear of English, who are afraid of English, that English is very dangerous subject for me, I'm very I'm not able to improve our communication skills, I'm not good at English, I get good marks in mathematics, some other examination, but as far as English is concerned, I always suffer. These 5 tips for those who want to improve their communication skills. Let's see what 5 tips are. The first one is, if you talk about the tips of improving your communication skill. The first thing is, if you want to improve your communication skills, open your mouth. Problem is, we want to improve our English by writing. We want to improve our English by reading. Writing and reading are most important thing for improving any language, but not the primary thing, not the first thing. So let's talk about in Hindi. Why? Because it is very important topic to talk about. कई बार ऐसी बातें होती हैं कि अगर आप किसी लैंग्वेज को सुधारना चाहते हैं तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं रीडिंग और राइटिंग पर। किसी भी भाषा को अगर इंप्रूव करना हो, दुनिया में कोई भी भाषा हो, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, दुनिया की किसी भी भाषा को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग प्लेज अ वाइटल रोल, लेकिन ये प्राइमरी रोल नहीं निभाता है। इंग्लिश के साथ हम लोग क्या करते हैं कि आज भी अगर आप किसी से पूछते हैं कि इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो क्या करना चाहिए, बहुत आसानी से बता दिया जाता है, रीड न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर को पढ़ें। बहुत आसानी से बता दिया जाता है कि मूवीज़ देखें, इंग्लिश मूवीज़ देखें विद सबटाइटल्स, इंग्लिश वोकैबुलरी, वर्ड्स मीनिंग को आप स्ट्रॉन्ग करें। ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट फिर मैं बता रहा हूँ ये प्राइमरी नहीं है। किसी भी भाषा को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, या कोई रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे वो भोजपुरी हो, अंगिका हो, वज्जिका हो, मैथिली हो, किसी भी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पीकिंग। आपको बोलना होगा। तो पहला टिप्स मैं यही लेकर आया हूं कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, आजकल पूरे देश विदेश से मुझे कॉल आते हैं, कई गल्फ कंट्रीज से कॉल आते हैं कि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है, आपसे सीखना है, क्या करना चाहिए, उन्हें भी मैं यही बताता हूं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर परेशान होते हैं, जिन्हें सोल्यूशन नहीं आया है, और किसी भी बंदे को अगर यह लगता है कि वह यह सारा जो भी टिप्स मैं बता रहा हूं और जिस सीरीज में बता रहा हूं, जैसे पहला पॉइंट अगर मैंने जो लिखा, अगर आप उसको आप उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से आप इसका यूज़ कर रहे हैं, अगर आप में इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स हैं वो टिप्स हैं स्पीकिंग।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज आप किसी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग। नाउ यू हैव टू चेक योरसेल्फ, आप बोलने के लिए क्या करते हैं। तो मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा और सोल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहला स्पीकिंग। तो स्पीकिंग करने के लिए आपको क्या करना है? पर डे ट्राई टू स्पीक समथिंग। आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो आपके घर में कुछ रिलेटिव्स हैं, आपके सिबलिंग्स होंगे, कजन्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, मैटरनल अंकल होंगे, मैटरनल पेरेंट्स होंगे, कोई भी व्यक्ति अगर हैं, आप उनके बारे में बात करें। ट्राई टू स्पीक समथिंग। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें, आप कोई भी स्मॉल एनिमल्स टॉपिक ले लें, जैसे द काउ, द डॉग, द रैबिट, एलिफेंट, कुछ भी हो, आप उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद बिना देखे कोशिश करें उसको रिपीट करने का। तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है, वो है स्पीकिंग। आपको कुछ भी करके बोलना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट गिव सम स्टाइल लाइक हाउ यू, हे वेयर आर गोइंग, आई एम डूइंग नथिंग, वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर नेम, what does he do? I don't want to learn English. I want to improve my English. I'm very weak at English. I am very poor in English, but I hope if I work hard, I'll improve. ये स्पीकिंग पार्ट था। थोड़ा स्टाइल दें, कुछ से कुछ बोलें, बट सबसे पहला पॉइंट स्पीकिंग। और ये इंप्रूवमेंट 80%। आई बेट आप यह काम करना स्टार्ट कर दें, आपकी जितनी इंप्रूवमेंट है वो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट 80% इंप्रूवमेंट यही करेगा। तो इस लॉकडाउन में आपको जो सबसे पहला काम करना है वो कुछ भी कोशिश करें बोलने की। चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है फाइंड ए इंग्लिश फ्रेंड। दूसरा पॉइंट, कोशिश कीजिए, जैसे अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो कैसे आप ग्रुप बनाते हैं, अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं कैसे ग्रुप बना लेते हैं, यहां तक कि अगर आपको कहीं किसी पार्टी में जाना है तो अकेले आप नहीं जाते हैं, आप लोगों को ढूंढते हैं। कोशिश करें फाइंड इंग्लिश फ्रेंड। आप एक ऐसे फ्रेंड को ढूंढें। ये फ्रेंड कोई फ्रेंड हो सकता, ये फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता, ये फ्रेंड आपके टीचर हो सकते, ये फ्रेंड कोई भी फ्रेंड हो सकता। फाइंड इंग्लिश फ्रेंड जिससे आप हर दिन कम से कम 5 मिनट्स इंग्लिश में बातें करेंगे। और याद रखें, वो इंग्लिश फ्रेंड ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। तो दूसरा पॉइंट है, लगभग वही स्पीकिंग से मिलता जुलता है कि आपको 80% जो इंप्रूवमेंट करवाएगी वो स्पीकिंग है। दूसरा, जितने भी अब पॉइंट आएंगे 2, 3, 4, 5, वो सारे 20% कवर होंगे। मतलब सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट 80% से ही होगी। दूसरा, फाइंड इंग्लिश फ्रेंड। कोशिश करें आप एक ऐसे दोस्त को ढूंढने का जिससे आप इंग्लिश में बातें कर सकें, और वो फ्रेंड जो आपको हमेशा इनकरेज करे, जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और खासकर जितने भी हिंदी भाषी युवा अगर इसे देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, दैट इज ग्रामर। दिक्कत क्या है कि हमारा यह तीसरा पॉइंट है, किसी भी भाषा को अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप यही लॉजिक को अपनाते हैं। आप स्पीकिंग करते हैं, सुनते हैं भाषा को, और ग्रामर तो बहुत लैंग्वेज पढ़ते भी नहीं और आप बोलना सीख जाते हैं। लेकिन चलिए, चूंकि इंग्लिश हम लोग नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं इंग्लिश के, तो हमें जरूरत है ग्रामर की। और इस ग्रामर को आप ध्यान दें सेंटेंस फॉर्मेशन पर। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना है। मेरा अगला जो पॉइंट है ग्रामर, वो सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना है। अक्सर इंग्लिश को ठीक करने के लिए हम लोग इसे ग्रामेटिकल पार्ट में चले जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, सिंटैक्स पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। आपको सेंटेंस फॉर्म करना सीखना है, जिसे कई टीचर स्ट्रक्चर बेस्ड में बताते हैं, स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड बताते हैं। मैं भी खुद स्ट्रक्चर से ही बताता हूं सेंटेंस को फॉर्मेशन करना। तो पहला पॉइंट स्पीकिंग, सेकेंड पॉइंट फाइंड इंग्लिश फ्रेंड, जिससे आप अक्सर बातें कर सकें 2 मिनट 4 मिनट। नेक्स्ट वन इज ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान दें, ताकि आप सेंटेंस को फॉर्म करना सीखें। क्योंकि आपका जो हेजिटेशन खत्म हुआ, आपकी जो कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, उसे कौन और हेल्प करेगा, तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन पर। चौथी चीज जो 4th नंबर है, ये 4th नंबर में वो चीजें आएंगी जो आपको अक्सर लोग सजेस्ट करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें, वर्ड्स मीनिंग को प्रिपेयर करें, इंग्लिश मूवीज देखें। मैं इसे
इंग्लिश एक्टिविटीज, जितने भी इंग्लिश एक्टिविटीज हैं, ये जितने भी इंग्लिश एक्टिविटीज हैं, नंबर 4, जितने भी इंग्लिश एक्टिविटीज हैं, ये इंग्लिश एक्टिविटीज को, जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ना हो, मूवीज देखना हो, वर्ड्स मीनिंग को कलेक्ट करना हो, इसे मैं नंबर 4 रखता हूं, जिसे आपको कई लोग सबसे पहले टॉप पे रख देते हैं। और आप बचपन से आप ये सारे काम घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन आज तक इंप्रूवमेंट नहीं हुई, आप चेक कर सकते हो खुद को। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तभी है जब आपका डर खत्म होगा, हेजिटेशन खत्म होगा, आप बोलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये एक्टिविटीज़, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना हो, वर्ड्स मीनिंग कलेक्शन हो, या और भी चीज़, मूवीज़ देखना हो, इंग्लिश मूवीज़ देखना हो, इंग्लिश नोवेल पढ़ना हो, आपको ये हेल्प करेगा। और लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और चूंकि इसमें भी जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर 5, ये जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आप अपने अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको अगर MBA के लिए जाना है, अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप IELTS TOEFL एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको कोशिश करनी है अपने सिलेबस पर ध्यान देने की। मतलब जो लास्ट वन है वो है, अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अनुसार आपको काम करना है। क्योंकि आपका जो स्पीकिंग पार्ट था, हेजिटेशन, वो खत्म हो रहा है। सेकंड पार्ट है कि आपको एक इंग्लिश फ्रेंड ढूंढना है ताकि आपकी जो हिचक है, जो आपका डर है, वो खत्म हो जाए। तीसरा पार्ट है ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, जहां आपको सेंटेंस फॉर्म करने आना चाहिए कि इस सेंटेंस को आखिर हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। नंबर 4 जो इंग्लिश एक्टिविटीज़ है, चाहे वो इंग्लिश एक्टिविटीज़ आप कोई मूवीज़ देख के करें, इंग्लिश मूवीज़ देखकर, न्यूज़पेपर देखकर न्यूज़पेपर पढ़ें, जो भी इंग्लिश एक्टिविटीज़ है। और लास्ट वन आपकी रिक्वायरमेंट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको अलग तरीके से बताना होगा, अगर आप MBA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको अलग तरीके से बताना होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 to 4 आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, सही में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ये जो 4 पॉइंट्स है इस पर आपको काम करना होगा। और लास्ट जो 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट्स है, वो अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आप अपने टीचर से मिलें, मुझसे मिलें, या आपको जहां लगता है कि आप अपने इंग्लिश को अपनी फील्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंस आप दे सकते हैं, उसके लिए आप संपर्क करें। तो इस लॉकडाउन में कोशिश करें कि अभी आपके पास वक्त है, और ये ऐसा वक्त है क्योंकि आप कुछ मिरेकल करें और घर बैठे बैठे कोशिश करें इन टिप्स के हेल्प से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको फॉलो करें। और अगर आपने इसी ऑर्डर से इसे फॉलो किया, आई प्रॉमिस आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। थैंक यू।